Yeah, 8A. She's in 8A. Anyways, last class we have done thermodynamics. We have done two class of thermodynamics. First we did system surrounding and work done, isothermally reversible, then maximum work done. Then for chemical reaction, W is equal to minus delta NGRT. Then in change in internal energy and first law of thermodynamics. In second class, what all things we studied? Different types of processes: isobaric, isochoric, adiabatic, isothermal, and relationship between change in enthalpy and internal energy, right? And for chemical reaction. Today we are going to do phase change. What we are going to do? Phase changes. Okay, so phase change में फिर enthalpy of physical change. Physical change में what you are going to do? Phase transition, atomic and molecular change. And what beta? Dilution. And what beta? So today we are going to do enthalpy of physical changes. ये ले बेटा ये ले. Coffee lover now hater. ठीक है ना? आजा. श्रिया. Dawn. Okay, phase transition बेटा. What all phase transition we have? Phase मतलब क्या होगा? अरे बेटा सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो मेल्टिंग, लिक्विड को फ्रीज करेंगे फ्रीजिंग, फिर लिक्विड से मैं क्या बना होगा? वेपर. सो इट विल बी व्हाट? वेपराइजेशन. देन सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनता है, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड से वेपर, सब्लिमेशन. क्लियर है? वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, एटमाइजेशन. अच्छा, एटॉमिक लेवल व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा? वी आर गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो आयनाइजेशन. आई एम गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट बेटा? So in phase changes, beta, one thing is always remember, we have to keep constant temperature and pressure. So chalo beta, first all these things. Can you see all these three things? Solid, liquid and gas. ये सॉलिड से मैं लिक्विड में जाऊंगा तो क्या बोलेगे बेटा? ओके, सो चलो सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलेगे बेटा? मेल्टिंग और फ्यूजन. लिक्विड टू गैस उल्टा. हाँ, कंडेंसेशन. ठीक है. एंड लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग. सॉलिड टू गैस. क्लियर है? तो इतना फेस चेंज पढ़ना है. या वेरी गुड. चलो बेटा आ जाओ. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अच्छा, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी. एफ लिखा मतलब विच प्रोसेस? फ्यूज. तो मैं उसको मेल्ट करूंगा बेटा, सॉलिड को मेल्ट करूंगा. तो बेटा ये डेफिनेशन में दिस डेफिनेशंस दे आस्क व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या लिखोगे? इट इज द एंथैल्पी. ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू राइट फॉर 1 मोल ऑफ सॉलिड. फॉर of solid without change in temperature at constant pressure is called as what? Enthalpy of fusion. So it is the temperature where your solid gets converted into liquid. Clear? Enthalpy of fusion. अच्छा बेटा, if I want to fuse solid, आपको क्या करना पड़ेगा? हीट निकालना पड़ेगा या सप्लाई करना पड़ेगा? सॉलिड को मेल्ट करने का तो सप्लाई. So it is always endothermic. So delta H fusion will be always positive. It will be always. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. देख रहा है ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है. हेलो अलिश का है, देखे. तो विल बी पॉजिटिव. चलो, हीट इज एब्जॉर्ब्ड. अच्छा, फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में मैं क्या करूंगा? पानी है, इसको मुझे फ्रीज करना है तो मुझे हीट क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. तो अगेन व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, अभी लिक्विड से मैं क्या कर रहा हूं? सॉलिड बना रहा हूं. तो व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड, ओके, इट विल फ्रीज. सो व्हाट विल हैपन बेटा? हीट विल बी, बोलो, evolved. So it will be what? Exothermic, negative. Clear? वेपराइजेशन में मुझे हीट देना पड़ेगा कि क्या करना? इसको मुझे वेपर बनाने का है तो आई टू सप्लाई हीट ना. So when 1 mole of liquid without change in temperature at constant temperature is called as what? Enthalpy of. So total heat change accompanied. So it is endothermic. देख बेटा, इधर लिक्विड से गैस लिखा है कि नहीं? बोलो. कंडेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा ना, मतलब. तो इट इज व्हाट बेटा? एक्सोथर्मिक. Same thing we'll write beta. Gas to liquid. So it will be what? Negative. Clear. Any difficulty clear? Sublimation. मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा कि नहीं? Right? Solid to gas. So when 1 mole of solid goes directly into vapor at a constant temperature and pressure is called as what? Enthalpy of sublimation.
एक सॉलिड से गैस बन गया. ओके. अभी बेटा मेरे को सॉलिड से लिक्विड बनाने में क्या होता है? फ्यूजन. लिक्विड से गैस को क्या कहेंगे बोलो? अरे लिक्विड से गैस को क्या बोलेंगे? वेपर. वेपराइजेशन होगा कि नहीं? तो बेटा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा बोलो? अरे डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो जाएगा कि नहीं बोलो? लिक्विड लिक्विड कैंसल, तो इसको क्या कहते हैं? सबली. ये एमसीक्यू में ओरली एक सम आता है बेटा. आपको एग्जाम में क्या दिया रहेगा? व्हाट दे हैव गिवन? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विल बी गिवन. एंथैल्पी ऑफ vaporization will be given. Then what is the enthalpy of sublimation? Add these two. देखना ये दोनों को ऐड करके आंसर आया कि नहीं बोलो. क्लियर है? ऐसा न्यूमेरिकल आएगा बेटा. आ जाते हैं नेक्स्ट. सम बेस्ड ऑन एंथैल्पी ऑफ फेस. देखो बेटा नाउ वी डिड ऑल दिस थिंग. ए सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलेंगे बोल? मेल्टिंग और फ्यूजन, राइट ना बेटा? लिक्विड टू गैस वेपर. तो अभी डायरेक्ट में अगर ये सॉलिड टू गैस जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन होगा. उल्टा आ जाएगा तो गैस टू कंडेंसेशन. लिक्विड टू दिस फ्रीजिंग. बराबर है. और देखिए सॉलिड से डायरेक्ट आई एम गोइंग हियर, सो व्हाट इट इज? टेल मी. तो सब्लिमेशन इज व्हाट बेटा? वेपराइजेशन प्लस फ्यूजन और नॉट? टेल मी. अभी बेटा ये सम कैसे करोगे? ओरली बताओ क्या क्या दिया है. चलो हियर बेटा व्हाट इज गिवन? फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ. एंथैल्पी ऑफ. सो व्हाट दे हैव टू कैलकुलेट? एंथैल्पी ऑफ. तो क्या होगा आंसर? इन दोनों को ऐड करेंगे. वेरी गुड. इजी. क्लियर. हेलो लुक बेटा. इजी न्यूमेरिकल. अच्छा नाउ इन टेक्स्ट बुक बेटा दिस डेफिनेशन यू हैव टू स्टडी. आई एम शोइंग ना बेटा. वेट. हेलो. इन टेक्स्ट बुक बेटा दिस डेफिनेशन बेटा पेज नंबर इज 74. व्हाट इट इज? 70. एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. कैन यू सी दिस? पेज नंबर 74. इस बोल्ड में दिया बेटा. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. देन enthalpy of vaporization, then enthalpy of sublimation. Got it? Right. Okay. Now when I say ionization enthalpy, ionization, suppose I am sodium. सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम आयन बनेगा. That is which energy? Ion. If I want to remove electron, will electron come out on its own? No, ना. Who is attracting it? Nucleus ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? So I have to supply energy. So enthalpy of ionization is what? Endothermic. It is what? Endothermic. Clear? So it is the energy required. देख बेटा डेल्टा एच और आयन लिखा है ना, तो आयन इट इज द एनर्जी एंथैल्पी चेन अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस. इट इज एंडोथर्मिक. पॉजिटिव है ना बेटा? क्लियर. ये अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, दो, इफ आई रिमूव एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज रिमूव्ड, इट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1. सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कौन ज्यादा होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी 2. बिकॉज व्हेन आई रिमूव वन इलेक्ट्रॉन साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज, सो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, सो आई टू सप्लाई मोर एनर्जी. सो I1 I2 I3 में कौन ज्यादा रहेगा? I3, फिर I2, फिर I3. मिला क्या? ओके. अभी ये आई वांट टू, सो दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ए क्लोरीन इज देयर 287. आई एम गोइंग टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू इट. सो व्हाट विल हैपन? टेल मी. नीवा, इट विल बिकम an or not? Tell me. Okay, and it will become 288. So it has become stable. This was less stable. It has become. So when an electron is added, what will happen? Energy will be released. When you remove electron, you have to supply energy. But when you add electron, energy is released. Why it is released? Because वो unstable से क्या बन गया? Stable. Higher the stability, lower the energy. Clear है? So an atom is gaining electron. क्या है वो? Gaining. तो उसको क्या कहते हैं बेटा? Electron gain enthalpy. क्या कहते हैं? Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is what? Tell me.
It is the enthalpy change when one mole of gaseous phase of an element accepts an electron to form gaseous. इसको लिखेंगे कैसे? डेल्टा एच ई जी. ई जी मीन्स इलेक्ट्रॉन gate. And it is what? Exothermic. What it is? तो नेगेटिव है कि नहीं बोलो बेटा? क्लियर? ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन है. रूहानी बेटा, एटमाइजेशन से क्या दिमाग में आता है? मॉलिक्यूल से मैंने क्या बनाया? एटम. तो मुझे फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा ना. सपोज Cl2 है, 2Cl are there. Cl2 is a molecule, and if I break it, then it will become what? Cl atom. Look here, enthalpy of what it is given beta? Atomization. So chlorine molecule था ना ऐसा, Cl मिलके molecule, it was मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक करके क्या बना दिया? क्लोरीन. क्लोरीन एटम. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. अनुग्रह बेटा, मीथेन में कितना मॉलिक्यूल है? फॉर्मूला CH4. ये मॉलिक्यूल है कि नहीं बोल बेटा? तो अभी मुझे इसके सारे एटम, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये ब्रेक करना पड़ेगा, ये ब्रेक करना. तो कितने एटम बनेंगे? 4 हाइड्रोजन के और एक कार्बन का. देख रहा है बेटा? एंथैल्पी ऑफ, तो ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो इट इज पॉजिटिव एंडो. इजी. हेलो. ओके बेटा. सोल्यूशन. सोल्यूशन कब बनता है? आई टेक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अच्छा बेटा, मैंने नमक को पानी में डाला तो दो तरह का डिसोल्यूशन होता है. हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? सोल्यूशन चैप्टर में भी. कोई सॉलिड को मैं पानी में डालूंगा तो हीट क्या होती है बोलो बेटा? एब्सॉर्ब. किसी को पानी में डालेगा तो हीट क्या होती है? रिलीज. नमक को पानी में डालेंगे तो बेटा व्हाट विल हैपन? इट इज व्हाट? हीट इज एब्सॉर्ब. एंडोथर्मिक. Okay, so it is the enthalpy when one mole of substance is dissolved in specified amount of solvent. It is known as enthalpy. देख, enthalpy of solution तो SOLOH. Clear? Enthalpy of solution. तो नमक को पानी में डालते तो एनर्जी इज व्हाट बेटा? एब्सॉर्ब. सॉल्यूशन विल बिकम हॉट. अपने को पता नहीं चलता है बट थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका. क्लियर? अच्छा, अभी नमक को मैं पानी में डालता तो बेटा क्या होता है? प्रोसेस वो मैं बताता हूं. ओके, लुक हियर. When I add salt to water, what happens? Tell me. थोड़ा सोचो ना. हाँ, डिजोल्व होता है. अच्छा बेटे, यहाँ पे now Niva, look, this was my NaCl. NaCl will form what? Na plus N. And I have taken dissolve this in what beta? Water. I have dissolved this in what? Water. So when I dissolve NaCl in water, आपको अंदर NaCl दिखाई देगा क्या बेटा? कहाँ गायब हो जाता है ना बेटा. So what do you mean by that? Dissolve. But why? But why? But Na is positive and this is negative. They should again come together and form NaCl, na? हाँ, या इट फॉर्म्स. नो 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 नो, NaOH and HCl कैसे होगा बेटा? नो, वी आर नॉट डूइंग इलेक्ट्रोलाइसिस. What happens beta? You know water is a polar solvent. Water has what beta? Two pole. Oxygen is negative and this is what? Positive. What happens? This Na plus is surrounded by water. Which end of water will surround? O or H? This is positive. So who will surround it? So NaOH is surrounded by what beta? This water. ऐसा पूरा. तो बेटा ये जो प्रोसेस होता है, इसको जो वाटर सराउंड करता है, वाटर को व्हाट वी कॉल हाइड्रा. व्हाट वी कॉल? एंड देन वाटर विल सराउंड Na प्लस. सो वी कॉल इट एज हाइड्रेशन. क्या कहेंगे? हाँ, तो सर्टन. अच्छा, एन Cl को हु विल सराउंड? टेल मी बेटा. Cl माइनस है ना बेटा? तो विल सराउंड विच एंड? तो बेटा अभी क्या हो जाएगा? इसको देखे, ये पॉजिटिव कौन था बोल बेटा? H ना. तो इसको सराउंड करेगा. ऐसा एवरीवेयर बेटा. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो Cl इज सराउंडेड बाय H प्लस आयन. अब बेटा दोनों के बीच में कौन आ गया? रिया टेल मी. नीवा टेल मी. Na प्लस एंड Cl माइनस बोथ इज सराउंडेड बाय whom? What?
इसलिए बेटा दिस Na+ and Cl- will not come closer to each other and we won't see salt in. अच्छा, if I heat this or if I keep this salt water in sun, what will happen? Water will evaporate and what will remain in the. हाँ, तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, मतलब ये बीच का इनके बीच में ये जो वाटर था ना बेटा, यहाँ पे दिस वाज आल्सो सराउंडेड बाय वाटर ना बेटा, ये वाटर गायब हो जाता है this. अब ये वाटर जब गायब हो जाएगा तो Na+Cl- को देख पाएगा कि नहीं, इसलिए वापस नमक बनता है। क्लियर है? अच्छा, अभी ये जो Na+ और Cl- था, वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, NaCl इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो उसका एक लैटिस होता है कि नहीं, याद है SCC BCC सब पढ़ा था। तो लेकिन बेटा Na+ और Cl- को अलग होने के लिए एनर्जी चाहिएगा कि नहीं, ब्रेक करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए NaCl सॉलिड था ना बेटा, वो ब्रेक होके क्या बनेगा, Na+NCl, तो वो एंथैल्पी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी। व्हाट वी कॉल इट एज, व्हाट डू मीन बाय लैटिस एंथैल्पी? NaCl का क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी। फिर Na बन गया, फिर उसको जब सराउंड करता है पानी, जब इसको सराउंड करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ΔH, हाइड्रेशन एंथैल्पी। विच एनर्जी? हम्म। तो बेटा सोल्यूशन कब बनेगा? एंथैल्पी सोल्यूशन कब बनता है? जब NaCl का लैटिस टूटता है और पानी उसको क्या करता है? सराउंड करता है। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट? लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस प्लस हाइड्रेशन। क्लियर है? अच्छा, NaCl को तोड़ने का है मुझे, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो इट इज एंडोथर्मिक, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये तो लेटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइड्रेशन इज व्हाट बेटा? Na+ इज सराउंडेड बाय O का, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज व्हाट? एक्सोथर्मिक। व्हाट बेटा? तो इट इज नेगेटिव। क्लियर है? अब बेटा दोनों को ऐड करो, टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट? अरे बोलो, 740 790 प्लस 6, तो व्हाट आंसर आई गॉट? +4 एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अरे बेटा, मैंने कोई भी सॉल्ट लिया तो सॉल्ट को ब्रेक होगा तो उसका लैटिस ब्रेक होगा, तो लैटिस एंथैल्पी, पानी उसको सराउंड करेगा तो विथ एनर्जी हाइड्रेशन, दोनों को मिक्स करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एग्जाम में आपको सम देंगे बेटा, क्या सम आएगा? 7 बेटा। कैन यू सी व्हाट न्यूमेरिकल दे विल आस्क? दिस ओरली तू सॉल्व कर, चल इसको। पेज नंबर तुम्हारा कौन सा है? 75 पे। कैसे करोगे बताइए। 7 क्या दिखा है, पढ़। लैटिस एंथैल्पी दे दिया है और हाइड्रेशन, और हमको क्या ढूंढने का है? हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लैटिस एक पॉजिटिव होता है हमेशा। ये तेरा हाइड्रेशन क्या था? बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज नेगेटिव। ओरली आंसर आ जाएगा कि नहीं, बोलो? इजी। इजी ना अनुग्रह, समझा के नहीं? तो 699 माइनस ये करना कितना होगा? 7.2 ना? डिवाइड क्या झिंगी आले? 6 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये 8 हो जाएगा ना, तो 7 पॉइंट हो जाएगा कि नहीं, बोलो? अच्छा, ये कितना था? 99। हाँ, तो ये 81 है ना? हाँ 780, अच्छा मैंने 99 लिखा है ना, हाँ बराबर, सॉरी। तो 17 किलो जूल पर। इजी। सब चिंदी, आज के सब हम लोग करने वाले हैं, सब चिंदी चिंदी सब है बेटा एकदम। क्लियर है? बेटा फ्रीजिंग, राइट है ना, सब्लिमेशन, वो सब कितने के लिए पढ़ते थे हम लोग? फॉर 1 मोल। फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। वी यूज्ड टू स्टडी ऑल फॉर 1 मोल। इजी। वी आर स्टडिंग इट फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। क्लियर? ना बोलेगे सर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, तो वैसा बताता दोस्तों बेटा। ओके।
चलो पहले डायरेक्ट न्यूमेरिकल बता देता है इससे रिलेटेड। ए ए ए ए ए ए ए हेलो, पे अटेंशन हियर। ये वाला मैं ओरली करता हूँ। क्या करेंगे बेटा, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर इज व्हाट 87। मैंने नोट्स में भी ये सॉल्व करके दिया है, मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है। सिक्स एमसीक्यू, अलिश्का व्हाट इज गिवन। 6.24 grams or are vaporized by supplying 5.89 kilojoules of heat. आर वेपराइज, हाँ, कैलकुलेट व्हाट बोला है। Vaporized. हाँ, ए एंथैल्पी, व्हेनेवर वी कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी मोल, वन। तो अभी मुझे क्या ढूंढने का है, यहाँ पे आपको दो चीज दिया है। एक तो यहाँ पे क्या दिया है, मास दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इथेनॉल मैंने कितना जलाया था बोल बेटा। हाँ सॉरी, सॉरी 6.24 के लिए मुझे कितना मिलता था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ दे हैव टू, हाँ 5.89, हाँ 5 अभी वो लोग ने कितने के लिए बोला है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर इथेनॉल। तो हाउ मच ए इथेनॉल, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज फॉर व्हाट, 1 मोल। 1 मोल इज मोलार मास और नॉट, टेल मी। सो हियर इट विल बी व्हाट बेटा, आरएमएम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H by 4. कितना सी है अंदर, 2 सी। एच कितना है, 5+1। ओ कितना है, तो कितना हो जाएगा, And 24 plus 6 प्लस 16, 46। बराबर है कि नहीं बेटा। अरे देखना, 12, 24 + 6, 30 + 46। तो 46 ग्राम, ऑप्शन क्या, 46 ग्राम के लिए कितना, तो दिस यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल गेट। 5.89 divided by 6. हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए। समझा बेटा, क्या किया हमने, समझा कि नहीं, बोल। ऑनलाइन स्टूडेंट है सिया, नेत्रा, सिया, युक्ति, कॉफी लवर, कॉफी हिटर। हाँ सर समझा। चल मल्टीप्लाई कर, चल क्या यस हो रहा है। 89 / 6.24। 43.41. आ गया ना आंसर, कितना इजी था बोल, राइट। अच्छा बेटा, ये मैं तेरे को एक बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर तुमको ये दिया है नोट्स में, देखना है, ये देख। एक ना बेटा, इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं इरेज करने का ना बेटा, एक मिनट हाँ। एक मिनट आएगा, देख बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, ये है कहाँ पर है पता है क्या, ये देख, सॉल्व किया हुआ है। इथेनॉल वाला सम देखने का है, ये देख, ये रहा। वहां पे वो लोगों ने वैल्यू खाली, हाँ ये देख, ये रहा। अरे बेटा ये देख ना, ये देख, ये देख। अरे पर देख तो सही, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर 1 मोल आ रहा है, याद है, तो देख 46 के लिए कितना, और 6.24 के लिए वो लोग ने दिया था ना, देख बेटा अपन ने सॉल्व किया था ना ये। इजी है कि नहीं बोलो, इट इज गिवन इन माई नोट्स ऑल्सो बेटा। ये तुम्हारा किसका था, 3.32 लिखा है, वो तुम क्या लिख सकते हो इसको, एमसीक्यू नंबर पेज 73, ऐसा लिख दे बाद में, पेज 73, MCQ 6। 87 था वो, सॉरी 87, 87, पेज 87, MCQ 6। एंथैल्पी ऑफ पेपर है उसका सोल्यूशन पूरा, वो एमसीक्यू का। हे भगवान, देखो हाँ, ये इधर उसको कट कर दे और लिखा था, पेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87। मिला बेटा आप दोनों को, MCQ 6 का सोल्यूशन मिल गया। चलो, इजी था, बोलो, मिला के नहीं बोलो। चलो इरेज कर दू ये, हेलो, आगे बढ़े, चल अब इधर पे आ जाते हैं। ये वाला हम लोग ना, एक हो गया बेटा, फिर हम्म हम्म, ओके,
अब बेटा इसमें तो कुछ है नहीं, फिर मैं तुमको यहाँ पे बताता आ जाता। अब हम लोग बेटा एक नया चीज क्या पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी। पहले तो ना, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्म में ये सब्लिमेशन वाला भी कहाँ पे तो था बेटा सब, टेक्स्ट बुक में कहाँ पे था सब्लिमेशन वाला, आई थिंक नहीं, वो पुराने ओल्ड टेक्स्ट बुक में था, यहाँ पे एमसीक्यू में भी नहीं है। बट वो मैंने आज बताया ना था आपको, स्टार्टिंग में ही सम बताया था ना, सब्लिमेशन इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, वेपराइजेशन प्लस फ्यूजन, बराबर है, राइट। ओके, नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या, बोलो बेटा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इधर नहीं, किधर गया, फॉर्मेशन बाद में करेंगे बेटा, अरे सॉरी, हाँ पीछे पीछे पीछे, हाँ ये रहा, टाइप 2 लिखा है ना मेरे नोट्स में, देखो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द हेडिंग, स्टैंडर्ड, कोई भी चीज का स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो, अगर प्योर मेटल होगा क्या होगा, तो प्योर मेटल का हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज व्हाट, जीरो, इट इज व्हाट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो अगर मैंने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एफ ई, ऐसा मैंने लिखा डेल्टा एच ऑफ एफ ई, तो कितना होगा, जीरो। डेल्टा एच ऑफ कॉपर, राइट ना बेटा, तो इट विल बी हाउ मच, जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ बेटा गैस, वो गैस में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन सा गैस है, O2 अकेला है कि नहीं, देखो दोनों O ही है ना बेटा, N2, N2, H2, Cl2, ये सबका कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन CO अगर होता तो जीरो होता था क्या, क्या दोनों सेम गैस है, अलीश का दोनों सेम है क्या, नहीं, हाँ, तो इंडिविजुअल गैस का हमेशा क्या होगा, बोलो, जीरो। क्लियर, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इंडिविजुअल गैस या इंडिविजुअल मेटल। O3 भी एक वही है ना सब, P4 भी वही है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, मतलब एक रिएक्शन होता है तो टोटल एनर्जी चेंज मुझे कैसे पता चलेगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला, बोलो बेटा। ये इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, ए इसमें प्रोडक्ट कौन कौन है, रूहानी बेटा, प्रोडक्ट कौन है, हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ डी, लेकिन ये बैलेंसिंग के लिए मेरा नंबर भी है ना कुछ, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल प्रोडक्ट का एनर्जी हुआ कि नहीं, बोल बेटा। अभी रिएक्टेंट में कौन कौन है, बोल। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी, और उसका बैलेंसिंग के लिए जो नंबर मैंने डाला है, क्लियर है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सम आएगा तो क्या फॉर्मूला है, बोलो, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर। अब मैं आपको एक सिंपल सा सम बताता इधर का। ओके, आ जाइए इधर, किधर, चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 पे आ जाओ, पेज नंबर 88। ये 9th वाला सम, ठीक है, सक्षम बेटा, ये 9th वाला सम क्या लिखा है, पढ़, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे देखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन दे दिया है, चल चल पहले अपना फॉर्मूला बता, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या था, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है कि नहीं, एकदम इजी। अभी तेरे को प्रोडक्ट में कौन कौन नजर आ रहा है, प्रोडक्ट में Fe और कौन है, C। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, एंथैल्पी ऑफ Fe प्लस एंथैल्पी ऑफ CO2। अच्छा, कोई नंबर है बैलेंसिंग के लिए, 2 और 3। अब ये प्रोडक्ट ना झिंगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, Fe के आगे क्या नंबर था, 2, इसके आगे क्या था, 3। माई, ये बेटा ये सॉल्व है मेरे बुक नोट्स में, मैं बताऊंगा, मेरे नोट्स में सॉल्व है।
माइनस सक्शन रिएक्टेंट में कौन कौन है बोल। हाँ, डेल्टा एच ऑफ Fe2O3 और कौन है, CO। अच्छा, ये कोई नंबर है बैलेंसिंग के लिए इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे है ना। अब बेटा मुझे वो लोग ने किस किस का वैल्यू दे दिया है, चलो देखते हैं। ए, Fe2O3 का वैल्यू दे दिया है कि नहीं बोलो। अरे बोलो ना, इसका दे दिया है। नहीं। कौन सा ये, समेशन समेशन। हाँ 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 हाँ, सिग्मा ही। अरे तू ये नहीं भी लिखेगी, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर लिखेगी तो भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। ए, और किसका वैल्यू दिया है तेरे को, सीयू का दिया है। अरे देखना बहुत इजी है, खाली डायरेक्ट सब सीयू का वैल्यू दिया है कि नहीं बोलो। ये तेरे को दे दिया है, और किसका दिया है, CO2 का भी दे दिया है। अभी तू बोले तो एफी का नहीं दिया है। एफी कौन है, अकेला है। अकेले का कितना होता है, अभी पढ़ा था। अकेला मेटल होगा तो कितना होगा, 0। अकेला मेटल होगा तो कितना होगा। समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, 2 × 0 + 3 × CO2 का कितना वैल्यू दिया था बोलो, -3। सबका देख लेने का, किलोजूल 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 है, हाँ तो बस किलोजूल में, कभी कभी 1 जूल और 1 किलोजूल दिया रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर Fe2O3 का कितना वैल्यू है, इसका आगे कोई नंबर था क्या, नहीं। फिर CO का कितना है, और उसका आगे कोई नंबर था, डाल दो आंसर आ जाएगा कि नहीं बोलो। कुछ भी टफ है क्या ये सब, बताओ, बोलो। इजी है ना। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ सॉल्व करके दिया है, तो मैं बताता हूँ, आ जाओ। आई विल शो इट यू ना बेबी, डोंट यू वरी। ये अपना पेज नंबर क्या है, 88 का 9th वाला ऊपर से। तो ये देख बेटा, टन टन ये रहा। अरे मैंने आंसर नहीं किया बेटा, इसको कहा पेज 88। कौन सा था, 9th सब। ये देख रहा है, देखना एफी का वैल्यू 0 आया कि नहीं बोलो, बाकी सबका वैल्यू वो लोग ने दिया था। इजी, वो भी आप सॉल्व कर लेना, इजी है कि नहीं। अरे ये जो फॉर्मूला लिखा उसके पीछे है देखा, नहीं मिला आपको। It's not आज ये ज्योति standard enthalpy के बाद। इसी के पीछे लिखो ना। Yes. इतना इजी था बोलो बेटा। ये एंथैल्पी वाले सब चिंदी सम होते हैं, एकदम चिंदी सम होते हैं। चिंदी था कि नहीं बोलो। अच्छा, कभी कभी कैसा सम आएगा यह पता है क्या, सुन ना। वो लोग डेल्टा एच दे देंगे, क्या दे देंगे, मतलब देख तेरे को डेल्टा एच का वैल्यू दिया रहेगा, इसका नहीं देते, एफी का तो 0 होता है, इसका दे दिया रहेगा, इसका दे दिया रहेगा, और इसका बोलेगे ढूंढने के लिए, तो भी सेम फॉर्मूला होगा कि नहीं बोलो। अनुग्रह ये देख, अरे तेरे को डेल्टा एच दे देंगे यार, फिर इसमें से किसी एक का नहीं दिया रहेगा, कर पाएगा। चल बेटा अभी ये मैं तेरे को समी बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, आ जाओ, इधर पे है कोई अम्मा, इसमें तो नहीं है, कोई बात नहीं, इधर पे नहीं है, लेकिन मैं तुमको बताते, डोंट यू वरी ब्रो। ये एक मुझे करने का है, फिर इसका करने का है, एक ये करना है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो भाई, क्लियर। हाँ, एक टेक्स्ट बुक का सम है बेटा, देख टेक्स्ट बुक का सम है इधर का, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट, रुक रहे। ये ना, ये रहा टेक्स्ट बुक, पेज नंबर इज 77। नहीं, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही पूछा है, शिट। चिंदी है कि नहीं, अभी आपको आएगा कि नहीं बोल। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही पूछा है, क्या दिया है बोल बेटा। फॉर अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला है ना ढूंढने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड दिस, बराबर। इसमें बेटा आप लोगों को एक CO2 का वैल्यू दिया है, किसका दिया है, ये देख CO2 का दिया है, पानी का दिया है, दिख रहा है कि नहीं। C2H6 का भी दिया है, बट O2 का नहीं दिया है, लेकिन O2 अकेला है, 0। इजी, इजी,
बस तो डेल्टा एच मिल जाएगा। देखिए O2 का हम लोग ने क्या लिया, 0 लिया। बाकी वैल्यू डालना है, बस ये बैलेंसिंग का नंबर देखने का अच्छे से। सपोज बेटा यही सब में मैं चेंज करता आपको, मैंने ना डेल्टा एच दे दिया अपने को, डेल्टा एच कितना मिला बोलो, ऐसा मैं लिख के दे दूंगा, डेल्टा एच इज हाउ मच, -3119 क्या है। और मैं क्या बोलूंगा, एंथैल्पी ऑफ इथेन ढूंढो। क्या ढूंढो, तो आप खाली क्या करते बेटा, जहां पे भी इथेन है वहां पे क्या डाल देते, एक्स, राइट ना। और यहाँ पे ये इसके जगह पे क्या डाल देते, ये आंसर डाल देते, आ जाता कि नहीं बोलो, बोलो ना। ठीक है कि नहीं, तो ऐसा भी आ सकता है, दिया रहना चाहिए, वो लोग ने नहीं दिया है, कोई बात नहीं दिया है। तो ये देख बेटा, लेकिन मैंने ना ऐसा आपको ना इसमें दिया था, यहाँ पे देख बेटा, ये इथेन का ही सम है, दिख रहा है। अरे बेटा ये सब में मैंने चेंजेस कर दिया है, इसका मैंने डेल्टा एच दे दिया है, और मैंने क्या बोला, इथेन का ढूंढो, बरोबर है कि नहीं। इथेन का कितना है वो ढूंढो, और मैंने इसका इसका वैल्यू दे दिया था आपको, देख बेटा, इथेन का नहीं पता है ना, तो इथेन की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, इजी। अरे या तो पूरा रिएक्शन का ढूंढने को बोलेगा, या तो रिएक्शन में से किसी एक कंपाउंड का बोलेंगे, कर पाओगे तो रिएक्शन का दिया रहेगा, या सबका दिया रहेगा और रिएक्शन का नहीं दिया रहेगा तो रिएक्शन का पूछेंगे, इजी। अब बेटा है ना, मोल से करेंगे बेटा, ठीक है, मोल से रिलेटेड, इधर आ जाओ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कहां पर आओगे, पहले पता है क्या, पहले पेज नंबर है तुम्हारा, नहीं, हाँ 88, 88 में नाइन्थ वाला सम, 88 में, अरे नहीं, ये वाला थोड़ी किया था, 88 में ये वाला सम, या सो मत रे, इजी है बहुत, मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, रुक जाओ। चल, सोती है या क्या दिया बोल बेटा, हाउ मच हीट इज इवॉल्व एंड 12 ग्राम ऑफ सीओ, 12 ग्राम ऑफ सीओ देखने का, सीओ, सीओ पूरे रिएक्शन में सीओ कहां पर है, इधर पे दिख रहा है कि नहीं, तो हाँ बस, तो ये तेरे लिए मेन हो गया। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन कितना दिया है, 4 सी, और हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, तो तू यहाँ पे पहले क्या लिखेगी बेटा, सीओ का वो लोग ने क्या दिया है, मास, तो क्या लिखेगी, मास, और डेल्टा एच, ओके। इसमें कितना सीओ था बोल बेटा, 4 सीओ, तो 4 सीओ होता, तो कितना दिया है एनर्जी, 4 सीओ का मास कैसे ढूंढेंगे, 7 बेटा, एक कार्बन का कितना है बोल बेटा, 12, एक ऑक्सीजन का, तो -1200 मुझे मिल रहा था, मतलब 4 × 28 करता तो मुझे कितना मिल रहा था, अभी पूछा कितना है, नीवा कितना पूछा है, देयर फोर 12 ग्राम होगा तो कितना कितना इजी था, अलीश का देखा क्या, दैट विल बी योर आंसर, इजी। जो पूछा है वो देखने का और फिर करने का, मैंने ये सॉल्व करके दिया हुआ है बेटा, कहाँ पे दिया देखो बेटा, यहाँ पे, ये अपना क्या था, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 का, ये यहाँ पे 9th क्वेश्चन था ना, ये देखो मेरे नोट्स में आ जाओ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 का, ये इसके नीचे वाला, ये देखो ये पेज 88, 9th, देख रहा है, ये 4 सी वाला ही सम था कि नहीं बोलो, देख, दिख रहा है कि नहीं, इसी, बराबर ना बेटा, वैल्यू वो लोग ने आगे पीछे किया रहेगा थोड़ा, ठीक है ना, बाकी तो सेम ही है ना। चले, चल नीवा, यू विल टेल मी नाउ विच सम वी आर गोइंग टू डू, अरे कहाँ पे गया वो, CLF वाला, हाँ ये रहा, पेज नंबर 89 का टॉप सम, व्हाट इज रिटर्न, अरे नीवा बेटा, व्हाट इज रिटर्न, टेल मी, सॉल्व, इट इज सॉल्व, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का एंथैल्पी चेंज दे हैव गिवन,
6 ग्राम ऑक्सीजन मैंने जलाया तो मुझे एंथैल्पी मिला, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, मास, और यहाँ पे क्या दिया है, एंथैल्पी। ओके, ऑक्सीजन दिया ना, तो यहाँ पे मैं O2 का लिखता हूँ। O2 का यहाँ पे वो लोग ने कितना दिया था, 6 ग्राम। 6 ग्राम होता तो कितना आ रहा था तेरा, बोल। अब वो लोग ने किसके लिए पूछा है, व्हाट इज द, हाँ, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो इक्वेशन में ऑक्सीजन को ही तू सेलेक्ट कर। ऑक्सीजन ये रहा बेटा, ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पे अभी O2 है, तो O2 का क्या होगा बोलो बेटा, O2, तो O2 का कितना मास होता है बोल बेटा, 2 × 1 मोल के लिए हम लोग करते थे ना कभी भी स्टैंडर्ड, तो 32 ग्राम होगा, तो कितना, कितना इजी था बोल। मस्त सो रही है यार एकदम तो। इजी है ना। अच्छा, ये भी मैंने, लिसन, ये भी मैंने सॉल्व करके दिया हुआ बेटा, दिखाओ ये लो। हाँ हाँ, पेज नंबर 88, हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, लिखा तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। पेज नंबर 89 का, ये देखिए नेक्स्ट सम ही था बेटा, कट कर दे पेज 89, विच सम इट वाज, 50। देखना बेटा, ये O2 का ही था ना बेटा, 6 ग्राम के लिए इतना, तो 32 ग्राम के लिए कितना, इजी। And the next one we did. ओके, नेक्स्ट वाला तो वी हैव डन बेटा, मतलब ये मैंने आपको नोट्स में क्यों दिया अभी समझा सर। ओके, अब बेटा ये हम लोग ने क्या क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सब कर दिया। ओके, अब हम लोग को कहाँ पे जाना है, हेडिंग, नया हेडिंग देखो क्या लिखा है। नहीं नहीं, उससे पहले हम लोग को ये करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी ये बाकी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इफ, ए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इफ, अरे ये हम लोग ने आज पढ़ा ना फॉर्मूला, ये एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इफ व्हाट इज गिवन, बॉन्ड्स आर गिवन, इफ व्हाट इज गिवन। अब तक पूरे चैप्टर में हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही कर रहे थे, लेकिन अभी बॉन्ड्स जब दिया रहेगा तो बेटा फॉर्मूला क्या है, रूहानी बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स, पहली बार हम लोग रिएक्टेंट से लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन, नहीं मिल रहा है बेटा, ये रहा। Behind. If it is this, now we are doing this. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिला क्या तुम लोगों को, हीरो लोग, अरे प्लीज। Yeah, so she like, like jump, jump. What is given? Bonds are given. If what is given? चले, बॉन्ड वो लोग ने ना ऐसा टेबल दिया रहेगा या ऐसा लिखा रहेगा, बॉन्ड का वैल्यू दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इसमें याद रखना नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा। आई विल गिव यू एन एग्जाम दिस रिएक्शन बेटा, व्हाट आई विल गिव यू, देखो ये रिएक्शन दिया है कि नहीं, CH4 प्लस Cl2 CH3 Cl HCl, तो डेल्टा H ढूंढने को बोला है, तो फॉर्मूला क्या है, और उन्होंने देखिए बॉन्ड का वैल्यू दे दिया है, मैंने ABCD लिखा है, दे विल गिव यू सम वैल्यू। तो ऐसा कभी भी सम आएगा और बॉन्ड ऐसा दिया रहेगा ना, CH का एनर्जी इतना है, Cl का इतना है, Cl का इतना है, HCl का इतना है, तो हम लोग को जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग कैसे फॉर्म में लिखेंगे, बॉन्ड फॉर्म में लिखेंगे, किसे फॉर्म में लिखेंगे, CH4 में कितना बॉन्ड होगा, एक C होगा और 4 H होगा, क्या नहीं देख रहा है, अरे इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि नहीं बोलो, Cl में कैसा होता है, CH3Cl में कितना CH बॉन्ड है, 1 2 और 3, और एक Cl बॉन्ड है, HCl में एक ही बॉन्ड होता है। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, रुहानी क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में CH बॉन्ड कितने हैं, क्या, प्लस Cl बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, तो ये देख यहाँ पे आ जा, देखा, ये देखना CH बॉन्ड कितने थे तेरे, 4 थे ना, 1 2 3 4, ये देख Cl बॉन्ड कितना है, एक,
हो गया। प्रोडक्ट में कौन है? सी एच कितना है बोल? 3, तो 3 into CH। CCl कितना है? तो ये CCl। HCl कितना है? ये Cl दिख नहीं रहा है तो डाल दो नोट्स में, लास्ट वाला एकदम दिख रहा है, एकदम नीचे का लाइन। हाँ हाँ, तो डेल्टा HCl लिख ले वहां पे। हाँ, दिखा है ना, लेकिन वो Cl बरोबर नहीं दिख रहा होगा। और ये ब्रैकेट बंद करने का इधर पे। कितना इजी था, चिंदी था कि नहीं? अब एग्जाम में वो लोग ये सब वैल्यू दिया रहेगा, बस ये वैल्यू डाल देने का। मतलब एक ही जगह पे आई वुड हैव गिवन सम रिटर्न वैल्यूज, आई वुड हैव गिवन सर्टन वैल्यूज। क्लियर? अच्छा, मैं भी तुमको सम ही बता देता हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो, आ जाओ ना इधर। टेक्स्ट बुक में किधर है? ये रहा। पेज नंबर इज 78, 79, 79। टन 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 79 इट इज। चल अलीश का, तू ही बता भी कैसे करेगी ये। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, 4.12 ही करना है मुझे, लेकिन इसको पहले मुझे मिटाने देंगे। अरे लो, और नीचे। हम्म। H4 plus H2 gives अच्छा, ये दे दिया है, और तेरे को मतलब ये रिएक्शन दिया होता है कि ये लोग ने ऐसा वाला एनर्जी का वैल्यू दिया है कि नहीं बोल। तो व्हाट दे हैव गिवन, बॉन्ड का एनर्जी दिया है कि नहीं? बॉन्ड का एनर्जी मतलब बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगे। तो अभी क्या फॉर्मूला है उसका बोल, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता था बोल बेटा? delta टोटल बॉन्ड, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। तो सबसे पहले तेरे को इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो N2H4, तो देख ऐसा NN होता है, 4H ऐसा अटैच। हाइड्रोजन में एक एक बॉन्ड है, और अमोनिया में ऐसा। और इसका बैलेंसिंग आगे कोई नंबर है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 लिखना भूलना नहीं। टोटल अभी रिएक्टेंट में तेरे को NH बॉन्ड कितने नजर आ रहे बता? हम्म। तो झिंगी NH 1 2 3 4। तो 4 डेल्टा H ऑफ NH। फिर NN बॉन्ड कितना है? no दो कैसे? एक ही है, N और N के बीच में एक ही बॉन्ड है ना। तो कहाँ दो है? सब बॉन्ड। अबे बॉन्ड ये ले ये बॉन्ड। और HH कितना है? तो ये रिएक्टेंट का खेल खत्म। अब तू कहां पे जाएगी? माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में नीचे लिखता, जगह नहीं है ना यहाँ पे। NH बॉन्ड कितना है? 1 2 3, लेकिन आगे 2 है ना बेटा। तो टोटल कितना हो जाएगा? चल अभी तेरे को NH का वैल्यू दिया है कि नहीं बता मुझे। ये देख, दिया है ना। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा बोल? अरे बोलना, 4 × 3 89। NN का वैल्यू दिया है देख, HH का भी दिया है देख। माइनस ये 6 × NH का भी दिया है कि नहीं वापस, ये देखना। 3 क्लियर, बस आंसर आ गया कि नहीं? अरे बोलो ना, सॉल्व किया हुआ है वहां पे। क्या है, कुछ दम है था क्या बोलो? तो फिर अच्छा, इसमें अभी मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? ये तेरे को ना कभी कभी मैं डेल्टा एच दे दूंगा, सुनना है। डेल्टा एच दे दूंगा और इसमें से किसी एक का वैल्यू नहीं दूंगा। कर पाओगे? नेक्स्ट सम वही है। so X हाँ, विल टेक, यार वेरी गुड, सो स्मार्ट यू आर, लुक हियर, राइट ना। चलो, अनुग्रह क्या दिया ये सब में पढ़। अरे यार चलना आजा। पहले तेरे को देखने का, वो लोग ने। हाँ, चला जा। देख CH, प्रतीक ये ऐसा बॉन्ड दिया दे दिया कि नहीं? जब भी ऐसा बॉन्ड दिया रहेगा तो तेरे को इक्वेशन को पहले कैसा लिखना पड़ेगा? स्प्लिट फॉर्म। अभी हम लोग ने किया था ना वो वाला, याद आ रहा है कि नहीं? ये CH3Cl है तो क्या करेंगे? समझा?
चल अपना डेल्टा एच का रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो तो भी समझ में आ गया। रिएक्टेंट में कितने सी एच बॉन्ड है बोल। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, 4। प्रोडक्ट या फिर सी एल कितना है, फिर बस हो गया, बराबर ना। अभी माइनस प्रोडक्ट में सी एच कितना है, वेरी गुड। सी एल कितना है, एच सी एल कितना है, बराबर है। अच्छा, ये लोग ने अभी क्या दे दिया तेरे को, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन दे दिया है, कितना दिया है डेल्टा एच, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, -104। सी एच का वैल्यू दिया है, सी एल का दिया है, एच सी एल का दिया है, तेरे को किसका नहीं दिया है। तो चलो बेटा, 4 इंटू सी एच का कितना था, 414। सी एल का 243। सी एच का 414। सी एल डोंट नो, तो इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ठीक है, या एक्स ले सकते थे। एच सी एल का कितना दिया है, चल बेटा पूरा सब कुछ पता है, सिर्फ ये पता नहीं है, मिल जाएगा बेटा, ये सब फुकट मार्क्स है सब, खाली डायरेक्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। इसी में बेटा ये पूरा सॉल्यूशन है। आया कि नहीं बोल, कुछ भी टफ था क्या, कुछ भी टफ था क्या, नहीं। क्या हुआ, चुपचाप होगा, समझा ना बेटा, बहुत इजी समय आएगा आप लोगों को बेटा, टेंशन जरा भी मत लेना, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, नहीं नहीं, हैसला से पहले अपने को वो करने का है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, पेज नंबर 77, 76। हेडिंग क्या था देखो नीचे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और फिर उसके नीचे डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा अपने को, 77 पे, क्लियर है। फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यही पेज पे बेटा, ये डेफिनेशन को मार्क कर लो, बहुत ही चिंदी है, पेज नंबर 77 पे है दोनों डेफिनेशन, दोनों बोल्ड, पेज नंबर 77 में दो ही चीज तेरे को बोल्ड में नजर आएगी, दोनों मार्क। फॉर्मेशन का मतलब क्या बेटा, कभी भी कोई भी चीज फॉर्म होती है तो रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सो, अच्छा कोई भी चीज हम चलाते हैं तो हीट इज रिलीज, तो कंबशन भी हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मल। पहला फॉर्मेशन, कभी भी याद रखना, फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर हमनी मोल, हमनी मोल, 1 मोल, किसके लिए होता है, कंबशन में भी हम लोग कितने मोल्स को जलाएंगे, सिर्फ 1 मोल। कंबशन में भी हम लोग कितने को जलाएंगे, सिर्फ 1 मोल। कंबशन में भी हम लोग कितने को जलाएंगे, ओनली 1 मोल, क्लियर। अभी आप मेरे नोट्स में आ जाओ, कंबशन का इक्वेशन कैसे लिखना है और फॉर्मेशन का, ये देखो मेरे नोट्स में टाइप 3 ऐसा हेडिंग दिखाई देगा, वहां पे आ जाओ। दिखाई दिया हेडिंग, फॉर्मेशन जब भी क्वेश्चन में आएगा तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ प्रोडक्ट साइड में, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके आगे 1 ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ। रिकॉर्डिंग किया है ना हम लोग ने, कि नहीं किया है, वो आंटी बोली थी। हाँ, नहीं है ये रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा, हो रहा है। अरे यार हो रहा है चलो बेटा, प्रोडक्ट साइड में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो आपको रिएक्टेंट साइड में कुछ भी कीड़ा करने का है तो करने का, प्रोडक्ट साइड में 1 ही होना चाहिए। सपोज बेटा अगर मैंने आपको बोला फॉर्मेशन ऑफ, 1 मिनट कुछ लिखो मत, यहां पे देखो, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हेडिंग है, दिख रहा है कि नहीं, ये डेल्टा एच एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा एच। मैंने अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा, राइट फॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला, तो मैं प्रोडक्ट साइड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिखूंगा और इसके आगे 1 ही होगा बस।
अब बेटा कंबशन का जब भी हम लोग इक्वेशन मतलब ये फॉर्मेशन का जब भी इक्वेशन करते हैं तो अभी देखने का कार्बन और ऑक्सीजन में बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड में कितने दो एलिमेंट है बोल। कौन है? सी और ओ। सुन पहले कैसे लिखने का, तो पहले सी लिखने का और ओ लिखने का। नेचर में ओ होता है या ओ टू होता है? सी क्या रहेगा? सी रहेगा। सी कौन से फॉर्म में रहेगा? सॉलिड। बस हो गया। अब बेटा देखने का, अब बैलेंस करने का, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी क्या है? वन है। वहां पे नॉट बैलेंसिंग, नॉट रिक्वायर्ड बैलेंसिंग। चले इधर आ जा साथ बेटा, मुझे बोला कंबशन इक्वेशन लिखो। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है मैं तेरे को बता देता हूँ, LaCH4। ये वन ही होगा यहाँ पर। अब तेरे को इसमें दो अलग अलग एलिमेंट कौन नजर आ रहा है? सी और एच। नेचर में एच एच होता है या H2 होता है? H2। ठीक है ना बेटा? अच्छा अभी यहाँ पर देखिए गौर से। लेकिन बेटा क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं है यार, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसके आगे क्या डालना पड़ेगा? और ये तो अपना सॉलिड स्टेट में है, पता है, और ये गैस है। बराबर है कि नहीं? क्लियर? चले। व्हाट्स योर नेम बेटा? नीवा। नीवा। मिथेनॉल। वहां पे मत देख, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मिथेनॉल इज एन अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मीथेनॉल। क्या लिखूंगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल में तेरे को कितने अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहे हैं बता? टू कैसे छिंगी? CH और O है ना? थ्री ना? अरे बेटा हमने डिफरेंट अल्फाबेट यार, यू कैन से थ्री ना। तो C, फिर कौन है? H, और कौन है? O। नेचर में H कैसा होता है? H होता है या H2? हाँ नेचर में O होता है या O2? वेरी गुड, इस पे भी प्लस आएगा। ये तेरा वन ही होने वाला है ना बेटा। अब बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम लोग कभी भी प्रोडक्ट साइड में कोई कीड़ा करने का, रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन एक है, यहाँ पे भी एक है। H यहाँ पे कितना है? 3 और 1 4 है यहाँ पे, लेकिन कितना है? तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? प्रोडक्ट में वो कितना है? और लेकिन यहाँ पे कितना है? तो 2 को 1 करना रहेगा तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हाफ। समझा क्या? बोलो। क्लियर है? ये सब मैंने, अब कैसे आया इक्वेशन समझा के नहीं? बोलो ओ बेबी। ये देख, अरे झिंगी देखना, ये देखिए, देख रहा 1 1 क्यों लिखा मैंने? समझा ये इक्वेशन कैसे बना? वो भी पूरा बताया कि नहीं? बोलो। समझा क्या? बोल भाई। मस्त। 1 मोल का भी तुम लोग को भी फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख पाओगे? एक मैं बोलू क्या, ओरली करोगे ट्राई? 1 मोल ऑफ बेंजी, बेंजी, बेंजी नहीं। चल क्या क्या करेगी बैलेंसिंग के लिए? पहले कौन कौन है अंदर, पहला बता एलिमेंट कौन है? हाँ, ठीक है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ये H2 होता है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 1 ही रहेगा हमेशा। कौन चला गया बे? कॉफी लवर गायब हो गई। इज इजी है कि नहीं? बोलो बेटा। अच्छा अभी कंबशन का इक्वेशन का ट्रिक मैं बताता हूँ बेटा। कंबशन का इक्वेशन का ट्रिक, हाइड्रोकार्बन, कभी भी हम लोग हाइड्रोकार्बन लेके बेटा, हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे CX होता है, HY होता है। प्लस क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे देखो बेटा, कंबशन मीन्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल ऑलवेज गिव यू CO2 एंड वाटर। बराबर है? कंबशन, कंबशन मीन्स बर्निंग इन है। बराबर है? अच्छा इसको बैलेंसिंग करने का क्या, यहाँ पे X है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? X। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए क्या लिखने का? Y बाय। अब बेटा राइट हैंड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट साइड हो गया मेरा, ये प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या लिखने का? हाफ ऑफ ऑक्सीजन, हाफ ऑफ ऑक्सीजन। अरे यहाँ जो रे नीवा, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड। ये तुम्हारा मेन इक्वेशन है, कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं, मैंने सब दिया हुआ है। क्लियर है? आई विल गिव वन एग्जांपल, कम ऑन, जस्ट डू इट।
या एक एग्जांपल दिया पहले, मीथेन, देख मैंने मीथेन लिख दिया, इसका इक्वेशन लिख। अच्छा, कोई भी चीज का कंबशन होगा ना, तो इसके आगे बाय डिफॉल्ट हमेशा वन ही रहेगा। बाय कंबशन इज ऑलवेज फॉर, वन ही रहने वाला है। चल अभी इसका बाय डिफॉल्ट देखो इक्वेशन करने का है। चले हीरोइन શું નામ છે? या चलो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर? अरे ये एक्स था ना, तो एक्स के यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन होता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेगी? वन। वाई का वैल्यू कितना है? तो हाँ, तो 4/2 तो कितना हो जाएगा? अच्छा साथ बेटा, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है देख, ये 2, और ये कितना है? 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन था बोलो? 4। 4 का हाफ। चल नीवा ये वाला कर, C2H6 इथेन है, कौन है ये? तो बाय डिफॉल्ट कभी भी पहले ये लिख देने का, बरोबर है? चल एक्स के जगह पे क्या है? तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड। ओ कितना हो गया? 2 × 2 4, 4 + 3 7। तो यहाँ पे क्या लिखते थे? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड, 7/2। बस डेसिमल में कन्वर्ट करने का, समझी क्या? बोलो, क्लियर है? चल बेटा मैं एक देता, इसका क्या होगा बोल? C6H6। एक्स का वैल्यू कितना है बोल? तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। वाई का वैल्यू कितना है? 6। तो y/2। चलिए, वो कितना हो गया? 12। 12 + 3 15। तो यहाँ पे क्या आएगा? 15/2। तो ये वन मोल ही रहेगा, अब समझा? अब बेटा आप बोलोगे सर ये सब कहाँ है? तो ये सब यहाँ है, ये देख, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, देखा कि नहीं? आप ये कैंसिल कर दो, ये आपको टफ गिरेगा, ये x + y/4 टफ गिरेगा। ये आप क्या लिखोगे डायरेक्ट यहाँ पे? हाफ ऑफ, समझे ना बेटा? अरे मेरे नोट्स में मैंने दिया है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखोगे? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड। देख मैंने सारे एग्जांपल दिया, भर भर के देख लो एक एक। और जिसको भी मैं चला रहा हूँ वो कितना होता है? वन मोल ही होता है। कौन भाग गया अभी बाहर? अकेला हुआ है। कॉफी लवर नहीं, और एक दिन भाग गया। सिया टाटा सिया सिया। सिया ने टाटा। टाटा सिया। इजी इट इज। बोलो इक्वेशन लिखने को आएगा कंबशन का। बोलो कभी कभी ऐसा ही बोल देंगे, कंबशन ऑफ मीथेन इज दिस, तो आपको रिएक्शन लिख के करना पड़ेगा। कंबशन ऑफ ईथेन, बेंजीन, कुछ भी देंगे तो कर पाओगे। वेरी वेरी नाइस, ये हो गया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? ये सब मैंने देख एग्जाम्पल दे दिया, बराबर है? तभी आप बोलोगे कहाँ पर था ये सब। लोग ये इक्वेशन सब अभी समझा के नहीं है? हेलो, ए कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो हमेशा डेल्टा एच उनका नेगेटिव ही आएगा। हाँ चाहिए ना इधर पे ब्रो, ये वाला सम कर रहेगे ना? चलिश का ब्रो, कम हियर, ये इज दिस वन। पेज नंबर तुम्हारा क्या है? 78 में सॉल्व एग्जाम्पल पहले बता। हाँ तो हम्म, पहले तेरे को क्या बोला है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोला है, तो पहले तेरे को CH4 का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, अपना ट्रिक डाल दे। ओके, और अपने पास अभी क्या है?
इधर y, छिंगी y का वैल्यू कितना है 4 है, तो y/2, हाँ तो 4/2, 2, वो कितना हो गया 2 × 2 4, 4 सॉरी 2, 2 + 2 4, तो यहाँ पे इसका हाफ। अब तेरे को क्या बोला है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ। CH4. अच्छा, अभी फॉर्म ये लोग ने सबका वैल्यू दे दिया है कि नहीं बोल बेटा, मतलब ये रिएक्शन का तेरे को क्या ढूंढने का है, डेल्टा एच ढूंढने का है, रिएक्शन का डेल्टा एच ढूंढने का है कि नहीं बोल। तो अभी तेरे को रिएक्शन का क्या था, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, बराबर है कि नहीं। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है बोल, डेल्टा एच ऑफ CO2 प्लस 2 × डेल्टा एच ऑफ वाटर, बराबर है कि नहीं, माइनस डेल्टा एच ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, ठीक है कि नहीं। अभी तुझे किस किस का वैल्यू दिया है बोल, ये बोलना, मीथेन का दिया है कि नहीं, मीथेन का पता है, वाटर का भी दिया है, CO2 का भी दिया है, ये भाई ऑक्सीजन का नहीं दिया है, अकेला है वो, O2 अकेला है। मेटल अगर अकेला होगा या कोई भी गैस अकेला होगा तो उसका क्या होता है, हाँ तो फिर चल अभी CO2 का वैल्यू कितना है बोल बेबी, -93.5 प्लस वाटर का कितना दिया था बोलो, एं, फिर इसका कितना दिया था बोलो, मीथेन का, 20. इसका ऑक्सीजन का कुछ नहीं होता है, 0, बस सॉल्व कर पाएगी, कितना इजी था बोलो, समझा क्या, अरे बेटा ये सब चिंदी चिंदी है और एकदम इजी मार्क्स है ये सब, क्लियर है कि नहीं, ये सब 2-2 मार्क के आते हैं यार, छोटा छोटा तो सब में बेटा, तुम्हारा अगर नसीब रहेगा तो 3 मार्क के लिए भी आ सकता है कभी कभी। ये एक मार्क क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए एक मार्क तो अभी लेकिन बेटा अभी समझा के नहीं बोलो बेटा, इजी था कि नहीं बोलो ये सारे सम। ओके, अभी क्या है यहाँ पर, बॉन्ड वाला ये सब बता दिया मैंने आपको। हाँ, अभी सब चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एवरी ईयर बोर्ड में आता ही है और उससे रिलेटेड सम आते हैं, उससे रिलेटेड क्या आते हैं, हेसेस लॉ, और ये लॉ भी बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इट इज, हेस लॉ, क्या लॉ है, हेस लॉ, क्या 3 ही जन बचे अंदर यार, ये लोग तो अभी क्या बोलेगा। तो हैश लॉ, वरना है ना हैश लॉ को मैं ना रोक देता हूँ, हैश लॉ को रोक देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग ने जो सम किए उससे रिलेटेड कर लेते, चल हैश लॉ को मैं रोक दूंगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पम 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 पम, हाँ, चलो बेटा अभी इधर पे आ जाओ, ये रहा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 87 पे आ जाओ। कोई भी बंदा अगर स्टैंडर्ड स्टेट में होता है तो एंथैल्पी क्या होगा उसका, चलो अनुग्रह बोलो, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या रहेगा, 0, वेरी गुड, क्लियर है। अच्छा, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कोई भी चीज फॉर्म होनी चाहिए, कोई भी चीज, पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड था उल्टा वो ब्रेक होके 2 H बना, फॉर्म हो रहा है क्या, एक्सो मतलब हीट इज रिलीज, ये सॉलिड से गैस हो रहा है, तो ये भी क्या है, एंडो, ये भी क्या है, एंडो, ही 2 Cl मिलके Cl2 बन रहा है कि नहीं, तो फॉर्मेशन है कि नहीं, तो फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सो, ये फॉर्मेशन था, ये सॉलिड से लिक्विड करने के लिए भी मुझे हीट करना पड़ता है कि नहीं बोलो, तो एंडो था, वो लोग ने पूछा क्या था, विच इज एक्सोथर्मिक, आ गया कि नहीं बोलो, इजी है कि नहीं। तो एंडो हुआ ना, तो झिंगी पूछा क्या है, नहीं, ये वाला, चले नीवा अपना दिमाग लगा, चल आ जा बेटा, कम ऑन यू कैन डू इट ब्रो।
10th वाला सम है। एच एच देख, वो लोग ने एच एच एंथैल्पी वाला दे दिया है। कितना दिया है? सबका वैल्यू दे दिया है, और वो लोग ने क्या बोला है? वो बॉन्ड एंथैल्पी ब्ला 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 फॉर एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ। तो चल HCl के लिए तेरे को पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि नहीं? H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनता है बोल? HCl बनता है। फॉर्मेशन तेरे को हमेशा, अच्छा तू भूल गई तो कोई बात नहीं, फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखने का? रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं नहीं, फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो यहाँ पे HCl लिखने का, लेकिन ये कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 ही होना। अच्छा HCl में कौन कौन है? लेकिन अच्छा, नेचर में HH होता है या H2 होता है? Cl होता है या Cl2? चलो वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। ओके, तो अभी लेकिन अपने को इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे Cl1 है, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? बोलना। हाफ। इसके आगे भी क्या लिखना पड़ेगा? कितना समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, हाफ हाफ लिखना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा बोले, इतना इजी था ये। हिया बेटा, यहाँ पे बॉन्ड वाला दिया है ना, बॉन्ड का वैल्यू दिया है ना, तो बॉन्ड के लिए क्या था एंथैल्पी का? भूल गए क्या? अरे टोटल बॉन्ड ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट्स। बोलो ना। माइनस टोटल बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट। तो अभी बेटा ये इक्वेशन में मैं करता तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता? हाफ ऑफ एच एच, ऐसा में ऐसा एक एक एच एच एक बॉन्ड होता है कि नहीं बोल? Cl ऐसा होता था कि नहीं? और ये HCl होता था। चल रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड है बोल? अरे बोल। हाफ इंटू डेल्टा एच ऑफ एच एच, हाफ प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच ऑफ Cl माइनस डेल्टा एच ऑफ, वैल्यू दिया है क्या रे राजू? बोल। एच एच का कितना था? 434, 242, 431, तो ये हाफ इसका कर कितना होता है बे? 217। इसका कितना होता? 121 माइनस 431। 338 minus 338 माइनस 431, सो 431 माइनस 338, माइनस 93। इजी इजी, बोलो। इजी है बेटा, पूरे सब इजी थे बेटा, ठीक है कि नहीं? लेकिन तुम लोग को ये सब फॉर्मूला सब अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आप लोग नहीं करोगे तो बेटा फिर कुछ नहीं होगा। मैंने सारे सम सॉल्व कराया, इन टेक्स्ट भी करवाए और पीछे के भी करवाए, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने किया है वो अभी तक। क्या भाई, क्या लिया कि नहीं, कॉपी किया कि नहीं पहले? करते हैं ना, फोटो ले लो वरना। हाँ रुक जा एक मिनट, खाली मेरे को देखने और कुछ बचा कि नहीं एक बार। देख आज हम लोग ने ये किया, देख डेफिनेशन आएगा ना एंथैल, अरे तेरे को लेने का था फोटो? हुई हम, अरे ले लेते ना अपने पास, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन के साथ देता मैं, टेक्नोलॉजी, अभी यार टेक्नोलॉजी। हाँ मैं हट जाता है, टेक्नोलॉजी। चल अभी मैं कुछ कराऊंगा नहीं, खाली देख लो तुम लोग खाली। देख मतलब मैं तुमको कहना चाहता, देख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देख स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ओके, डेल्टा एस पढ़ाया नहीं है, ये भी नहीं पढ़ाया है, एंट्रोपी नहीं पढ़ा है, देख ये आज करवाए ना। ये देख, हाउ विल यू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी ऑन बॉन्ड एंथैल्पीज? बॉन्ड दिया रहेगा तो टोटल बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? वो आपको एक एग्जाम एटमाइजेशन कर दिया कि नहीं बोलो? ये सम हो गया, ये बड़ा होगी भी, बड़ा बड़ा, हाँ ये हो गया इतना बस। सो दैट्स ऑल फॉर, वेट वेट वेट, हाँ ये सम करवा दिया। हाँ चलो बस बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी तो ये सैटरडे को हम लोग, नहीं आज ही सैटरडे ना, हाँ सॉरी, नेक्स्ट थर्सडे को पता है ना टेस्ट है सोल्यूशन का, मैंने डाल दिया ग्रुप में, बहुत 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का टाइम दिया तुमको।